हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ पार्ट मिनरल ऑफ पावर रिसोर्सेस का पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। पावर रिसोर्सेस बोलने से क्या समझेंगे? पावर और एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लिव्स। We need power for industry, agriculture, transport, communication, and defense. Power resources may be broadly divided into two categories: conventional and non-conventional resources. Conventional resources of energy are those which have been in common use for a long time. Firewood, fossil fuels are the two conventional sources of energy. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जो कि हम लोगमन जनरली यूज कर रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम। कन्वेंशनल सोर्सेस: firewood. It is widely used for cooking and heating. More than 50% of the energy used by the villagers come from the firewood. Fossil fuel: remains of plant and animals which was buried under the earth for a million years got converted by the heat and pressure into fossil fuel. Coal, petroleum, and natural gas are examples of fossil fuel. These are the main source of conventional energy. Coal. This is the most abundantly found fossil fuel. It is used as domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engine, and to generate electricity. Electricity from coal is called thermal power. कोल इज रेफर्ड टू एज ए बॉरिड सनसाइन, क्योंकि उसका जो यूटिलिटीज है, जैसे इंडस्ट्री में है, इंजन चलाने में है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए है, इसलिए इसको बॉरिड सनसाइन बोलते हैं। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। ये वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर, मतलब इंडिया में भी है, लेकिन ये जो कंट्री है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस करते हैं। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। झारखंड में ज्यादा कोल प्रोड्यूस होता है और ये रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो में होता है। पेट्रोलियम: It is found between the layers of the rocks and drilled from oil fields located in offshore and coastal area. समुंदर के बीच में और कोस्टल एरिया में पेट्रोलियम ज्यादातर मिलता है। After getting refined in refineries, it produces variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। आपका साइंस में पढ़ाया गया है कि ये प्यूरिफाई होता है, ये सेमी थिक फ्लूइड होता है ब्लैक कलर का, और इसको पहले प्यूरिफाई करते हैं और प्यूरिफाई करने के बाद हमको वेराइटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलता है, जिससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। Petroleum and its products are called black gold as they are very valuable. The chief producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. ये ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। In India, the leading producer are Digwoi in Assam, Bombay High in Mumbai and deltas of Krishna and Godavari rivers. ये इसी एरिया में हमारा इंडिया में पेट्रोल प्रोड्यूस होता है। नेचुरल गैसेस: नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपोजिट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। ये रिलीज कब होता है? जब क्रूड ऑयल निकल आ जाता है। It is used as a domestic and industrial fuel. Russia, Norway, UK and Netherlands are the major producer of natural gas. In India, Jaisalmer, Krishna Godavari Delta, Tripura and some areas offshore in Mumbai have natural gases. Hydel power. Hydel power मतलब water energy. Rain water or river water stored in a dams is made to fall from a height. डैम बना के और उसको हाइट से नीचे गिराया जाता है।
सिस्टमेटिक वे में। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम, पाइप के अंदर घुसा के उसको नीचे छोड़ा जाता है। द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड इन at the bottom of the dam. The moving blades then turns the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. वो जनरेटर के ब्लेड को पानी घुमाता रहता है और इसे घुमाने से जो टरबाइन है, टरबाइन का ब्लेड घूमने से उसमें इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। The water discharged after the generation of electricity used for irrigation. Irrigation के लिए यूज किया जाता है। 1/4 of world's electricity is produced by the hydel power project. The leading producer of hydel power in the world are Paraguay, Norway, Brazil and China. जहाँ जितना पानी है वो उधर ही ज्यादा हाइडल पावर प्रोड्यूस होता है। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया आर भाकरानंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। इधर इंडिया में ज्यादा, इधर जहाँ मतलब यही एरिया जगह पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है इंडिया में। थैंक यू। और ये जो लिखा गया उसको नोट कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए।